الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے منافقین کے لیے ایک منظر کشی کی گئی، ان کی حالت کی ایک منظر کشی کی گئی، اور وہ کیا تھی کہ جیسے آسمان سے بارش ہو اور اس میں اندھیرے اور کڑک اور بجلی ہو، اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دبا رہے ہوں کڑک کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ جو ہے وہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آج آیت نمبر 20 سے ہم مطالعے کا آغاز کریں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی ہم تمثیل ہی کی گفتگو میں ہیں، اور ادھر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یقاد البرق یخطف ابصارہم کلما ازاغ لهم مشوا فیہ واذ لم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یقادو یا مضارع کی علامت جو پریزنٹ اور فیوچر میں ترجمے کے لیے آتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اس کا، اسے۔ قادہ کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ قادہ جو ہے یہ کسی کام سے پہلے آتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام قریب ہے، یہ کام ہونے والا ہے۔ اگر پاسٹ کے کسی کام کی بات ہو رہی ہو تو اس کا مطلب کہ قریب تھا کہ یہ کام ہو جائے یا یہ کام ہونے والا تھا، اور اگر پریزنٹ یا فیوچر کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے یا یہ کام ہونے والا ہے۔ تو یقادو چونکہ مضارع کی علامت آ گئی پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے یا ہونے والا ہے۔ تو قادہ یا یقادو کے بعد ہمیشہ کسی نہ کسی کام کا ذکر ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیے یقادو، آگے یہ پورا جملہ جو ہے وہ کام ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیں پھر اس کو یقادو کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے۔ البرق، برق جو ہے وہ بجلی، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور الف لام خاص کرنے کے لیے، پیچھے جس بجلی کا ذکر آیا ہے اس کی طرف اشارے کے لیے۔ البرق یعنی وہ جو بجلی جو پیچھے تمثیل میں ذکر ہو رہی ہے، تو یہ جو بجلی ہے یخطف، یا پھر مضارع کی علامت وہ، اس کا، اسے، اور مضارع کا مطلب ہم اس کا مفہوم پریزنٹ اور فیوچر میں کریں گے۔ خطفہ کا مطلب ہوتا ہے جھپٹنا، کسی چیز کو جھپٹ کے لے لینا، اچک لینا، چھین لینا۔ تو یخطفو کا مطلب ہوگا وہ اچکتا ہے۔ اچکنا سب سے بہترین یہاں پر ترجمہ ہوگا اس کا، کیونکہ یہاں پر کسی چیز کو اچک کر لے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اچکتا ہے۔ یخطفو وہ اچکتا ہے کس چیز کو؟ ابصار، یہ بصر کی جمع، بصارت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی دیکھ، آنکھیں، اور ہم یہ ضمیر ہے، اس ہو کی جمع، اس کا مطلب ہے وہ سب، ان کا، انہیں، یعنی ان کی آنکھیں۔ ابصارہم، ان کی آنکھیں، کن کی؟ یہ جن منافقین کی، جن کی بات ہو رہی ہے، جو منہ پر اقرار کرتے تھے لیکن اندر سے کفر کرتے تھے، جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ابصارہم، ان کی آنکھیں، یخطفو وہ اچک کر لے جاتا ہے ان کی آنکھیں، یا وہ اچک لیتا ہے یا جھپٹ کر چھین لیتا ہے ان کی آنکھیں۔ اب یہ کون چھین لیتا ہے؟ برق یعنی بجلی۔ اب اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ برق یا بجلی جو ہے، اردو میں تو ہم اس کو فیمینن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی مؤنث کے طور پر۔ جب ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بجلی اچک لیتی ہے، جھپٹ لیتی ہے ان کی آنکھیں، یہ جھپٹ لے گی ان کی آنکھیں، تو اردو میں ہم ایسے کہیں گے۔ لیکن عربی میں جو بجلی ہے وہ اصل میں مذکر ہے، میسکولن ہے، تو عربی میں جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جو کلمے استعمال کیے گئے ہیں، وہ میسکولن والے، یعنی بجلی اس کو اچک لیتا ہے۔ تو ہم چونکہ اردو میں کر رہے ہیں ترجمہ، تو ہم اس کا ترجمہ پھر فیمینن انداز میں ہی کریں گے۔ البرق یخطف ابصارہم، تو بجلی ان کی آنکھیں اچک لیتی ہے۔ یخطف ابصارہم، ان کی آنکھیں اچک لیتی ہے، برق یعنی بجلی۔ تو یہ یقادو کے ساتھ مل کر، تو یقادو کا مطلب کیا تھا کہ قریب ہے یہ کام ہو جائے، تو وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بجلی کا ان کی آنکھوں کو جھپٹ لینا، اچک لینا، لے جانا، ان کی بصارتوں کو لے جانا۔ تو قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو، ان کی آنکھوں کو لے جائے، اچک کر لے جائے۔
कुल्लमा यानी ये क्या हालत है, जरा दोबारा देखिए, ये क्या हालत है, यानी बारिश हो रही है, उसमें अंधेरे हैं, बिजली है, कड़क है, और वो डर के मारे अपने कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं मौत के डर से, कड़क की वजह से, और अल्लाह ताला ने उनको घेरे में लिया हुआ है। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि करीब है, यानी उनकी हालत ऐसी है कि ये करीब है कि बिजली जो है उनकी आंखें उचक कर ले जाए। अभी आंखें उचक कर लेकर नहीं गई, लेकिन यानी हालत ऐसी है उनकी कि वो इसके करीब हैं कि उनकी आंखें उचक कर बिजली ले जाए। कुल्लमा जब भी, अच्छा यहां पर इसको जरा रुककर समझ लीजिए। जब भी का मतलब होता है जब का कलमा जब किसी माजी पर आता है तो फिर हम प्रेजेंट का माना करते हैं। इसी तरह इज़ा हमने देखा था कुछ दुरूस पहले कि इज़ा जब किसी पास्ट कलमे पर आता है तो प्रेजेंट या फ्यूचर का माना होता है। इसी तरह इज़ा, कुल्लमा, लव का मतलब अगर, इन का मतलब अगर, ये तमाम कलिमात जब माजी पे आते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन ज्यादातर फिर उस वर्ड जो उसके बाद आ रहा होता है, अगर वो पास्ट का वर्ड भी हो तो हम माना प्रेजेंट में करते हैं। तो कुल्लमा का मतलब जब भी। आगे देखिए, अज़ा इसका मतलब है रोशनी की या रोशन किया, लेकिन हम यहां पे करेंगे कि रोशनी करता है या करती है। कुल्लमा जब भी रोशनी करती है, ये फिर वही बर्क की बात हो रही है, बिजली की। जब भी वो रोशनी करती है, लहुम लाम के लिए, हम वो सब, यानी जब भी वो उन सब के लिए रोशनी करती है, वो बिजली जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाने के करीब है कि उनकी आंखों को उचक कर ले जाए, तो वो जब भी उनके लिए रोशनी करती है। मशऊ, ये मशी का मतलब होता है चलना, वाव अलिफ जमा की अलामत, यानी वो सब चलते हैं। जब भी उन पर रोशनी होती है वो चल पड़ते हैं। फी में ही, फिर वही ये रोशनी की तरफ, यानी उस रोशनी में चल पड़ते हैं। यानी जब भी वो बिजली उन पर रोशनी करती है, अज़ा बिजली रोशन करती है, लहुम उनके लिए, तो मशऊ वो चल पड़ते हैं, फी ही उसमें, यानी उस रोशनी में चल पड़ते हैं। आगे देखिए, वा और इज़ा जब, यहां फिर वही आगे जितने भी पास्ट वाले फेल होंगे, अज़लमा, कामू, इनमें मुजारे की अलामत नहीं है, लेकिन हम तर्जमा आज में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। और जब अज़लमा, अज़लमा का मतलब उसने अंधेरा किया, फिर वही बर्क की बात हो रही है कि बर्क ने पहले रोशनी की और जब उसने अंधेरा किया, यानी वो अंधेरा करता है। व इज़ा अज़लमा, आपको पता है बिजली जो है वो चमक रही होती है, आती है, एकदम रोशनी होती है, फिर अंधेरा हो जाता है जब गरज चमक चल रहा होता है, तो वो अंधेरा करता है, यानी और जब वो अंधेरा करता है या अंधेरा करती है वो बिजली, अला पर, हिम वही, उन पर, हिम यानी वही लोग मुनाफिकीन, जब उन पर अंधेरा करती है, कामू, कामा का मतलब खड़े होना, और वाव अलिफ जमा, ये कायम होना, कामा, ये वही लफ्ज है, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो खड़े हो जाते हैं। यानी क्या कहा कि जब भी बिजली उन पर रोशनी करती है वो चल पड़ते हैं उसमें, और जब वो अंधेरा करती है तो वो खड़े हो जाते हैं। वैज़ा अज़लमा अलैहिम, जब उन पर वो अंधेरा करती है, कामू वो खड़े हो जाते हैं। वा और लव अगर, शाआ उसने चाहा, लेकिन पीछे इज़ा की वजह से नहीं, लव की वजह से, माजरत, ये लव का मतलब है अगर, इसका भी वही माना, इसकी वजह से इसका तर्जुमा प्रेजेंट में करेंगे, यानी वो चाहता है या वो चाहे, और अगर चाहे, और लव अगर चाहे अल्लाह, अल्लाह अगर अल्लाह चाहे, लाम ये अब हमारे पास पहली दफा आया है। एक तो लाम हम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक लाम लाजमन या जरूर, तो ये लाजमन वाले माना में है, जरूर वाले माना में। तो अगर अल्लाह चाहे, वलौ शाह, और ये देखिए ये लौ शाह अल्लाह, ये वही है जो हम इंशा अल्लाह बोलते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा या अगर अल्लाह चाहे, तो लौ का मतलब भी अगर ही होता है, इन की जगह यहाँ लौ इस्तेमाल हो गया, तो लौ शाह अल्लाह। तो अगर अल्लाह चाहे, ला जरूर, ज़हबा
ज़हबा का मतलब हमने पहले भी देखा था, वो चला गया, लेकिन यहां पर वो चला जाए के माना में होगा। लेकिन ला ज़हबा कि यानी अगर अल्लाह चाहे तो वो चला जाए, बी साथ, समइहिम, समा वही उर्दू का लफ्ज समात सुनना, हम फिर उनकी तरफ, थर्ड पर्सन गायब की तरफ, प्लूरल में उन सब की तरफ, कि उनकी समात के साथ चला जाए। अगर अल्लाह चाहे तो उनकी समात भी समइहिम, उनकी समात के साथ ज़हबा चला जाए। यानी किसी चीज के साथ जाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उस चीज को ले जाए। तो अगर अल्लाह चाहे तो यकीनन जरूर, लाम का मतलब है यकीनन जरूर, लाजमी तौर पर, अगर अल्लाह चाहे तो जरूर उनकी समात बिसमीम, उनकी समात के साथ चला जाए या उनकी समात को ले जाए, यानी उनके सुनने को, उनके सुनने की कुव्वत को ले जाए। और अगर अल्लाह चाहे तो उनकी समात को ले जाए, वाह और अबसार, फिर वही लफ्ज बसर की जमा यानी आंखें, बसारत की जमा, हिम उनकी आंखें, यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनकी समात और उनकी आंखों को ले जाए। यानी क्या बात है कि करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले, जब भी रोशनी होती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा होता है, माफ कीजिएगा, जब अंधेरा होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो उनकी समात और बसारत यानी उनके सुनने और देखने को ले जाए, कि यानी वो बिल्कुल ही ना देख सके ना सुन सके उस तूफानी बारिश में। आगे, इन्ना बेशक, अल्लाह, अल्लाह, बेशक, अला पर, कुल्ली हर, ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कुल, शैइन शय, ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, चीज, और कदीर, कदीर का मतलब कुदरत रखने वाला। तो बेशक अल्लाह, अला कुल्ली पर हर चीज, कुल्ली शैइन हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। और ये कदीर का कलमा अगर आप याद कीजिए, जब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था तो रहीम में हमने देखा था कि दवाम और हमेशगी का माना होता है। इसी तरह कदीर भी उसी वजन पर है, यानी वो हमेशा से कुदरत रखने वाला है और हमेशा कुदरत रखने वाला रहेगा। अच्छा, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो मतलब क्या हुआ कि यानी वो लोग जो खड़े हैं इस तूफान में, बारिश है, कड़क है, करीब है कि उनकी आंखें जो है वो बिजली उचक कर ले जाए, अब इस हालत में वो लोग खड़े हैं। और अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह ताला आगे फरमाते कि अगर अल्लाह चाहे तो इनकी समात और बसारत छीन ले, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो ये दूसरी तमसील थी उन लोगों की, मुनाफिकों की, कि जैसे किसी तूफान में घिरे हुए हैं और बेबसी की हालत में है, थोड़ी सी रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं, जो ही अंधेरा होता है रुक जाते हैं। अल्लाह चाहे तो ये रोशनी तो आ जा रही है, अल्लाह चाहे तो उनकी समात और बसारत ही छीन ले कि वो चल ही ना सके। अच्छा, अब आप ये देखिए कि पहली तमसील में क्या बात हुई। पहली तमसील में ये बात हुई कि अल्लाह ताला, एक शख्स था, एक गिरोह था, उन्होंने रोशनी और आग जलाई, और जो ही आग जलाई और उसने रोशनी की, अल्लाह ने उनका नूर छीन लिया। ये भी मुनाफिकीन है, अब वो देख ही नहीं सकते। एक तो वो गिरोह था, एक तो वो मिसाल थी, और अब ये जो दूसरी मिसाल हमने 2 दिनों में पढ़ी, इसमें क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन थोड़ी सी रोशनी होती है तो वो चल पड़ते हैं, और थोड़ी सी अंधेरा होता है तो वो रुक जाते हैं, और अल्लाह चाहे तो इनकी समात और बसारत छीन ले। अभी अल्लाह ने इनकी समात और बसारत छीनी नहीं है। तो इससे एक अंदाजा होता है कि मुनाफिकीन में भी 2 तरह के लोग थे, एक वो कि जिनका नूर अल्लाह ले गया, और एक वो है कि जिनकी समात और बसारत अभी अल्लाह ने छीनी नहीं है, वो थोड़ा सा चलते हैं और फिर रुक जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी मजीद बहस कल शुरू में करेंगे, और फिर इंशाल्लाह अगली आयत की तरफ जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।